દિવાળી વેકેશન હવે પૂરું થઈ ગયું છે અને આજે હવે આપણે ભણવાનું ચાલુ કરવાનું છે. તો આપણે ધોરણ 5 એમાં આપણે શું ભણવાનું છે? હિન્દી. તો ધોરણ 5માં હિન્દીના પાઠ્યપુસ્તકમાં તમારે દ્વિતીય સત્રમાં 9મો પાઠથી ચાલુ થશે. પ્રથમ સત્રમાં 1 થી 8 પાઠ પૂરા થઈ ગયા છે. હવે આપણે 9મો પાઠ કાઢવાનો છે. બધાએ પાઠ્યપુસ્તક ખોલવાનું છે. એની અંદર આપણને આપેલો છે 9મો પાઠ જે છે કેસા શોર અથવા શોર કેસે. તો ચાલો બધા હવે આપણે પાઠ્યપુસ્તક છે એ ખોલો. આ છે તમારો 9મો પાઠ કેસા શોર. चित्र पाठ है. आ इकाई में स्वाद के साथ चित्रों द्वारा सब्जियों का परिचय दिया गया है. बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी. दोपहर का समय था. बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्होंने नींद आ गई उनको. तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई. ये सभी खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आई. तो शू बिरजू काका था એ પોતાના ખેતરમાં શું વાવ્યું હતું? એ શાકભાજી વાવી હતી. એટલે શાકભાજી વાવી હતી અને બપોરનો સમય થઈ ગયો હતો. તો બિરજુ કાકા છે એ ઝાડના છાયામાં આરામથી સૂઈ રહ્યા હતા. તો એને ઊંઘ આવી ગઈ, નીંદર આવી ગઈ. તો એટલામાં બધી શાકભાજીઓ છે એ રમવા માટે ભેગી થઈ ગઈ અને એ બધા રમતા રમતા ચર્ચામાં પડી ગયા. तो आलू ने कहा, मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ. सभी सब्जियाँ मेरे बिना अधूरी है. बच्चों बूढ़ों को भी बहुत भाता हूँ. चाट, चिप्स, टिक्किया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनते हैं. शकरदन ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ. मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं. तो बटाटाए शू कीधुं? बटाकाए कीधुं, हूँ बधी शाकभाजीमांथी सर्वश्रेष्ठ छूँ. बधी शाकभाजी मारा वगर अधूरी छे. बाळको ने वृद्धों ने हूँ खूब भावुं छूँ. चाट, कातरी, टिक्किया, रोटली एटले के एक प्रकारनी रोटली आवे चटपटी अने मजानी खावानी वानगीओ माराथी ज बने छे. आ तो शक्करिયું बोल्યું, હું બટેટાનો મિત્ર છું. મને પણ લોકો ખૂબ પસંદ કરે છે. હવે આગળ જોઈએ. તબ वटोणा से वटोणानी सींगो एमांथी वटोणाना दाणा उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम. उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े. रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसा बन सकता है? लौकी बोली. गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है. मेरा रूप रंग देखो कितना सुंदर लाल है. मेरा नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. मुझे खाने से लोग स्वच्छ रहते हैं. यह सुनकर आगे आई, मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ. सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में भी मेरा स्थान है. શું કીધું? પછી વટોણાની જે શીંગ હોય એમાંથી દાણા ઉછળીને બહાર આવી ગયા અને કહેવા લાગ્યા, શું અમને ભૂલી ગયા એ કે? અમને અનેક પ્રકારના શાકભાજી, પુલાવ અને ચટપટી કચોરીનો હું પ્રાણ છું એ કે. તે જ સમયે દૂધી અને ગાજર પણ કૂદી પડ્યા. એ કે રાયતું, કોફતા અને હલવો અમારા વગર કેવી રીતે બની શકે? એવું કોણ કહે છે? દૂધી કહે છે. પછી તો ગાજરે વાત કાપતા કહ્યું, હલવો તો મારો પણ બને છે. મારો રૂપરંગ તમે જોયો છે? કેવો સુંદર અને લાલ મજાનો છે. મારો રંગ તો તમે જુઓ એ કેમ? નામ સાંભળતા જ મોંમાં પાણી આવી જાય. મને ખાવાથી લોકો તંદુરસ્ત રહે છે. પછી તો કે આ સાંભળીને કોબીજ બહાર આવી. હું પણ આરોગ્ય માટે ઉપયોગી છું. શાક ઉપરાંત કચુંબર અને સલાડ પણ મારું સ્થાન છે. તો मिर्च पीछे क्यों रहे? यह भी कहने लगी. सभी चुप हो जाए. मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है. मैं पतली और चुस्त हूँ. तो भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी. अब करेला कैसे चुप बैठेगा? यह बोलने लगा जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया. तेरा नाम सुनते ही बच्चे भाग जाते हैं. मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है. यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग से क्या हो काफ़ी नहीं है. ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं. तो मरचू केम पाछळ रही जाए कि
તેમ તેમ મરચું હવે કહેવા લાગ્યું, બધા ચૂપ થઈ જાવ કે મારા વગર તમારા બધાની શું કિંમત છે કે મારા વગર તમારા બધાના શાક ફિક્કા છે, એમ મોળા મોળા. તીખું મરચું ન નાખ્યું શું થાય? મોળું. હું પાતળું અને ચુસ્ત છું. તો ભીંડોય પણ પોતાની કોમળતા અને અનોખા સ્વાદના વખાણ કરવા લાગ્યો. હવે કારેલું કેમ ચૂપ રે, કેમ ચૂપ બેસી રહે કે એ બોલવા જતું હતું ત્યાં તો ટમેટો એની વચ્ચે તેને રોકી દીધું અને કે કહેવા લાગ્યો, તારું નામ સાંભળતા તો એ કે બાળકોય દૂર ભાગી જશે એ કે મારો ખાટો મીઠો સ્વાદ તો બધાને સારો લાગે છે. તો આ સાંભળીને કારેલું છે એ રાળ નાખીને બોલ્યું, ફક્ત રૂપ રંગથી કાંઈ નથી થતું, તાવ જેવી બીમારી પણ મારાથી સાજા થઈ જાય છે, માટે લોકો મારો ઉપયોગ કરે છે. आखिर में कलगीदार बैगन आया। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है, मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। तो छेल्ले आखरे રીંગણું આવ્યું અને બધાને શાંત પાડી અને કહ્યું, દોસ્તો તમે બધા પોતપોતાની જગ્યા ઉપર ઉપયોગી અને સાચા છો, હળીમળીને રહેવામાં જ આપણો ફાયદો છે. બીટ, ગાજર, કોબી, પછી લौकी, પછી मिर्च के उन सबको मिलाकर बनाया कचुम्बर लिजेसदार होता है। आलू, शकरकंद, फूल गोभी, लौकी से बनी सब्जियां मन भावन बनती है। मिर्च, पछी धाना, आदू जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। इस तरह हम एक साथ घुल मिलकर और मज़ेदार हो जाते हैं। तो के बीट, गाजर, कोबीज, दूध, કેપ્સિકમ, મરચું ભેગા કરીને બનાવેલું કચુંબરી કે સ્વાદિષ્ટ હોય છે, એમ સારું હોય છે, સુંદર લાગે છે, મીઠું લાગે છે. ને બટાકા, શક્કરિયું, ફ્લેવર, ભીંડાનું શાક પણ ગમી જાય તેવું બને છે. મરચાં અને કોથમરી અને આદુ જેવા મસાલા જો રસોઈમાં સ્વાદ ભળી જાય તો કંઈક સુગંધ આપે છે. એટલે આ પ્રમાણે આપણે એકસાથે હળીમળીને રહીએ તો વધારે સરસ બની જઈએ છીએ. इतने में बिरजू चाचा जाग उठे। सभी सब्जियां उधर उधर भागने लगी। लौकी, करेला और कंकड़ी बेलों पर जा बैठी। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन में के अंदर घुस गए। भिंडी, मटर, बैगन, टमाटर पौधे की डालियों पर छिप गए। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। आटलामां शुं थयुं तो के आटलामां बिरजू काका छे ई जागी गया અને બધી શાકભાજી આમ તેમ દોડવા લાગી. દૂધી, કારેલા, કાકડી વેલાઓ ઉપર જઈને બેસી ગઈ. શક્કરિયા, બટેટા, ગાજર, બીટ જમીનની અંદર ઘૂસી ગયા. ભીંડા, વટાણા, રીંગણ, ટમેટા અને છોડવા ડાળીઓ ઉપર સંતાઈ ગયા. બિરજુ કાકા છે એ પણ પોતાના કામમાં મશગુલ થઈ ગયા. તો અહીંયા તમારો પાઠ છે એ પૂરો થઈ ગયો. મજા આવી ગઈ ને આ પાઠમાં? બધી શાકભાજીનો નામ અને બધી શાકભાજીઓ એકબીજાથી ઝઘડતી હોય આપણને આમાં જોવા મળી છે. તો અમે તમારે આમાં શબ્દાર્થ અને મુહાવરે હોમવર્કમાં 2 વાર લખવાના છે. પછી તમારા આવે છે ચિત્રો કે આધાર પર કહાની. તો તમારે બધાએ વાર્તા સાંભળવી છે ને? તો ચાલો હું વાર્તા કહું. तो कि एक जंगल था। उस जंगल में बरगद के पेड़ के पास एक हाथी रहता था। हाथी और बरगद के बीच पक्की दोस्ती। एक दिन बात बात में हाथी बरगद पर क्रोधित हो गया और बरगद की डालियाँ तोड़ने लगा। वह बरगद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। बरगद का पेड़ उसे समझाने लगा, हाथी भैया मुझे क्यों उखाड़ रहे हो? मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। गर्मी के मौसम में सब सूरज अग्नि का गोला बनकर गर्मी बरसाता है, तब सभी पशु पक्षियों को मैं छांव देता हूँ। अंत में मुझे रहने दीजिए, मैं आपकी भी कभी सहायता करूँगा। कई दिन बीत गए। गर्मी के दिनों में कड़ी धूप के कारण हाथी व्याकुल हो उठा। इतने में उसने आवाज़ सुनी, हाथी भैया अकू लाओ मत, इस और आओ, मेरी छाया में बैठो। कि आटला बधा व्याकुल था माँ, मारी छाया में बैठो, आराम करो, यहाँ तुमको गर्मी से राहत मिलेगी। हाथी बरगद के पेड़ के नीचे आकर खड़ा रहा। उसे सचमुच चैन मिला। उसने बरगद के पेड़ का उपकार माना। हाथी और बरगद दोनों खुश हो गया, खुश થઈ ગયા. તો આ વાર્તાનું નામ તમે હાથી અને બરગદ પણ પાડી શકો અથવા મિત્રતા પાડી શકો. તો વાર્તા સાંભળવાની મજા આવી ને?
હવે તમને બે ચિત્ર દીધા છે, બે ચિત્રનું વર્ણન ભેદ સ્પષ્ટ કરવાનું છે। तो कि पहला चित्र में एक खेत है, एक किसान हल चला रहा है, एक खेत जोत रहा है, दो लड़के दिखाई दे रहे हैं, नाचता हुआ मोर दिखाई दे रहा है, घास के दो गट्ठर दिखाई दे रहे हैं, एक बकरी लड़के के आगे है। बीजा चित्र में तो कि दो खेत है, दोनों खेत में बैगन और भिंडी के बड़े बड़े पौधे दिखाई दे रहे हैं, दो किसान सब्जी तोड़ रहे हैं, एक लड़का टमाटर खाता हुआ दिखाई दे रहा है, एक बकरी लड़के के पीछे है, सब्जियां का ढेर पड़ा है, खड़ा हुआ मोर दिखता है। तो આવી રીતને આપણે સ્પષ્ટ કર્યું, બંને ચિત્રને ભેદ સ્પષ્ટ કર્યો। તમને આ વાર્તા જેટલી હોમવર્કમાં આવડે એટલી તમારે જાતે લખવાની રહેશે। હવે આવે છે ભાષા સજ્જતા। आप जानते हैं कि जो मनोज ने गाजर खाया, टोकरी में शकरकंद है, घोड़ा दौड़ता है, गाय चरती है, लड़के पढ़ते हैं, गिलास में दूध है, मनोज बड़ा गाजर खाया, टोकरी में मीठा शकरकंद है, काला घोड़ा दौड़ रहा है, सफ़ेद गाय चरती है, 3 लड़के पढ़ते हैं। तो आ बधु तमने खबर पड़ी, बड़ा, टोकरी, घोड़ा, गाय, सफ़ेद, इन्हें ई संज्ञाओं ने विशेष बनाने वाले शब्द कौन थे? तो कि बड़ा, मीठा, काला, सफ़ेद, तीन और थोड़ा। तो कि जे आ शब्दों छे एने वाक्य में वधारो कोण आपे छे? तो कि आ बधा जे शब्दों आपेला छे ई। तो आ बधा जे शब्दों आपेला छे ई संज्ञा शब्दनी विशेषता बतावे छे। हुं बतावे छे? विशेषता। एने शुं कहेवाय छे? विशेषण। जो तमे एम पण कही शको, मनोज ने गाजर खाया, मनोज ने बड़ा गाजर खाया, टोकरी में शकरकंद है, टोकरी में मीठा शकरकंद है। आम पण वाक्य बोलो छो, आम पण वाक्य बोलो। वाक्य में फेरफार थतो नथी, पण एक शब्द थी वाक्य में वधारो थाय छे। तो जे शब्द थी वाक्य में वधारो थाय एने शुं कहेवाय? विशेषण। जेनाथी वाक्य केवुं लागे छे? सुंदर। तो आने बधाने शुं कहेवाय? विशेषण कहेवाय छे। आ बड़ा पछी मीठा, काला, सफ़ेद, 3, थोड़ा, ये बधुं शुं छे? तो कि विशेषण छे। तो शब्दों उदाहरण अनुसार तमारे वाक्य प्रयोग आमां करवानो छे। हवे क्रिया आपणे आवे छे, समजावो। मयूरी पढ़ती है, बीना दौड़ती है, सोनल खाना खा रही है, सचिन खेलता है, सलीम पानी पीता है, जोसेफ लिखता है। तो ऊपर दिए वाक्यों में पढ़ती है, दौड़ती है, खेलता है आदि शब्द क्रियाओं निर्देश करते हैं। अंत में इन्हें क्रियापद कहते हैं। तो जे आ दौड़ती है, पढ़ती है, खाती है, लिखता है, अंत में जे शब्द आवे छे, जे क्रिया दर्शावे छे, एने शुं कहेवाय छे? क्रियापद कहेवाय छे। तो हवे तमारे जो पद किसी कार्य अथवा करने से होने का बोध करवाते हैं उसे क्रिया कहते हैं। क्रियापद आपणे गुजराती में कहेवी ने, जे आपणे गमे ई क्रिया करी, लखवुं, वांचवुं, पढ़वुं, रमवुं, जमवुं, ए बधुं शुं छे? क्रिया छे। तो एने क्रियापद कहेवाय छे। होमवर्क में तमारे शब्दार्थ, मुहावरे अने आवडुं आ इतना जानी ए बधा नाम छे तमारे 2 वार लखी तमारा क्लास टीचरना वॉट्सएप नंबर पर सेंड करी देवाना छे। फरी मळीशुं आपणे आवता लेक्चर में। त्यां सुधी आवजो।